اللہ اکبر اللہ اکبر. چلو جی اللہ بہتر جانتا ہے. والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اصحاب کاف کا قصہ جو ہے وہ قریش مکہ کو مشرکین کو سنا کے پھر کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان لوگوں کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. وہ لوگ کون؟ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام. یریدون وجہہ، اور وہ اسی کی رضا چاہتے ہیں، اسی کی رضا مندی چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں ان کی طرف سے مت پھریں. تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ ان مشرکین کے ساتھ کہ پیغام دیا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کپڑوں سے آپ کو بو نہیں آتی، ان کا پسینہ آپ کو نہیں آتا، آپ ان کو ہٹائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں. ان چیزوں کو بتانے کے بعد حساب کاف کا قصہ کہ حق والے وہ لوگ تھے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ وہی لوگ تھے جو سردار تھے، ان کے ماں باپ تھے، بھائی بہن تھے. انہوں نے جو ہے وہ ان سب کے کہنے کے باوجود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے حق کا جو ہے وہ علم نہ چھوڑا، حق کی بات نہ چھوڑی، اور اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. اسی کو کہا گیا ہے وَقُلْ، اور کہہ دیجئے. قل کا معنی یہاں پہ کہنا ہوتا ہے، وہاں اعلان کرنا بھی ہوتا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ، اور یہ ہے حق. مِن رَبِّكُمْ، آپ کے پروردگار کی طرف سے. یہ ہے حق آپ کے پروردگار کی طرف سے. اب اس کے بعد ایک بڑی سیدھی سی بات بتا دی گئی. فمن شاء، بس جو کوئی چاہے، فلیؤمن، وہ ایمان لے. وہدیناہم نجدین، دونوں راہیں دکھا دی ہیں. یہ ان دونوں راہوں میں سے یہ حق ہے. یہ بات گارنٹی کر کے بتا دی گیا کل الحق من ربکم، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء، پس جو کوئی چاہے، فلیؤمن، پس وہ ایمان لے. لام لازم کے لیے آ گیا، یومنو فے علیحدہ، لام علیحدہ. ومن شاء، اور جو کوئی چاہے، فلیکفر، وہ انکار کر دے. یہ حق کا راستہ بتا دیا گیا ہے تمہیں. یہ سیدھا راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ کہ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کی طرف اطاعت مت کرنا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جن کے دل کو غافل کر دیا ہم نے اپنے ذکر سے، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، اور اس کا کام جو ہے وہ اب گیا گزرا کام ہے، ضائع شدہ کام ہے. جس نے بھی اپنے نفس کی پیروی کی، تو پیروی کس کی کرنا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح شام پکارتے ہیں، جو اس راہ پہ چلتے ہیں، ان کے ساتھ ہونا. یہ حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے. بس فمن شاء فلیؤمن، بس جس کا دل کرے، جو چاہے وہ ایمان لے آئے. فمن شاء فلیکفر، بس اور جو کوئی چاہے وہ اس کا انکار کر دے. یہ تو یہی امتحان ہے کہ تمہیں اختیار دے دیا گیا آزادی کا، کہ اس کے بعد تم کس طرف جا رہے ہو. لیکن یہاں پہ پھر توقف فرما کے سنا گیا انا، بے شک. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ راہوں جو دونوں دکھا دی ہیں تمہیں. انا اتدنا، بے شک. اتدنا اعتدام سے تیار کر رکھنا کسی چیز کا. بے شک تیار کر رکھی ہے ہم نے للظالمین، ظالم لوگوں کے لیے. کون ظالم لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے یہ انکار کیا. نارا، آگ. بس ہم نے ان ظالموں کے لیے ان آگ تیار کر رکھی ہے. احاطہ، احاطہ تن کیا ہوتا ہے؟ گھیر لینا. احاطہ بہم، وہ گھیرا کرے گی، گھیر رکھے گی. سرادقھا، سرادق لفظ جو ہے سرادق، اس کا معنی ہوتا ہے کناتیں، چار دیواری، باڑ. کوئی بھی چیز جو کسی چیز کا احاطہ کر لے اس کو جو ہے وہ سرادق کہتے ہیں. نارملی کہا جاتا ہے خیموں کے ارد گرد جو باڑ ہوتی ہے، جو گھروں کے ارد گرد ہوتی ہے، جو چار دیواری ہے، جو چیز جو ہے وہ کسی چیز کو کور کر لے اس کو جو ہے وہ سرادق کہتے ہیں. اور ہاں جو ضمیر لگی ہوئی ہے، کناتیں ہیں اس کی، کس کی؟ آگ کی. اس کی کناتیں، آگ نے اس کو چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو دیوار ہے، یہ جو سرادق ہے، یہ سرادق کی جو لمبائی ہے، سرادق کی لمبائی 40 میل تک کی ہے. اگر کوئی چاہے کہ اس کو پار کر کے نکلے تو وہ 40 میل کی لمبائی مانند اس کی جو ہے وہ کنات ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ، یہ لفظ بیسیکلی یستغیثون ہے،
अगर नून है, नून जो है वो चूंकि इन शर्तिया लगा, इन शर्तिया की वजह से नून जो है वो यहाँ से हटा दिया गया। यस्तगीसु लफ्ज़ किससे हमारे ज़हन में क्या आता है? इस्तगासा। इस्तगासा का मतलब क्या होता है? फरियाद रसी करना, दाद रसी करना, कुछ मांगना, किसी से अपना कुछ चीज़ मांगना। वहीं यस्तगीसु, और अगर वो दाद रसी चाहेंगे, अगर वो फरियाद रसी चाहेंगे, युगासु, युगासु फरियाद रसी की जाएगी उनकी, इस्तगासत उनसे, बाब इस्तफाल में से, इगासत उनसे। यहाँ पे भी बहुत नून है, युगासून है, लेकिन ये शर्तिया है और ये जवाब शर्त है, इस वजह से दोनों से नून जो है वो हज़फ हो गया। वहीं यस्तगीसु, और अगर वो चाहेंगे फरियाद रसी, दाद रसी, युवासु उनकी मदद की जाएगी, फरियाद रसी सुनी जाएगी, बेमाइन साथ पानी के। पानी कौन से? कल मोहले, काफ जो है वो हरफ तशबीह यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, की मानद जैसा के। मोहल कहते हैं किसी भी तेल की तलछट को, जैसे जो है वो कहा गया है सूरह इब्राहिम में, माइन सदीद, पीप मिला पानी। या अगर आप किसी चीज़ को, तांबे को या लोहे को या सोने को पिघलाएं, उस जो वो पिघल के पानी की मानद बन जाए, तो वो इसकी बताना क्या मकसूद है कि एक तो उसकी कराहत और उसके बाद फिर उसकी गर्मी, कि वो कितनी गर्मी होगी। कल मुहले, मानद तेल की तलछट के। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने इस लफ्ज़ मुहल के बारे में पूछा, तो आपने जो है वो लोगों से सोना मंगवाया, कुछ मंगवा के उसको जो है वो गर्म किया, जब वो पानी की मानद हो गया तो कहा ये मुहल है। यशवी, यशवी की लफ्ज़ जो है वो शवा, माना क्या होता है? झुलसा देना, जला डालना, वो जुला देगी। अल वजूहा, वजूह वजह वाहिद होता है, वो चेहरों को जला देगी, कि जब वो मांगेंगे पानी, पानी उनको जो तलछट तेल की दी जाएगी, वो मुंह के करीब आएगी तो खाल उतर जाएगी मुंह के चेहरे की। बेसा शराब, क्या ही बुरा पानी। बेसा का माना बुरा होता है, शराब पीने वाली चीज, वसात, और सात बहुत क्या है? मुर्तफका, मुर्तफका कहते हैं ठिकाने को, पनाहगाह को, और क्या ही बुरा ठिकाना है। यही मुसलमानों के लिए जो कहा गया है, हसना मुर्तफका, क्या ही अच्छा ठिकाना होगा। अगली आयत, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और नेक अमाल किए, इन्ना बेशक हम, ला नुज़ीउ, नुज़ीउ नहीं हम ज़ाया करेंगे, इज़ाअत उनसे, इज़ा का मन किसी चीज़ को ज़ाया कर देना, नून अलामत मज़ारे लगा हुआ है, नहीं हम ज़ाया करेंगे, अजरा, अजर, मन अहसना अमला, उस चीज़ का जो उसने अच्छे अमाल किए होंगे। ये मुकाबला है यहाँ पे दोनों चीज़ों का। यहाँ पे हमें पहले बताया गया कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, रब्बुल हक़ मिन रब्बिकुम, ये हक है तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। हमन शाह, बस जो कोई चाहे, फल युमिनु, ईमान ले। हम किसी को मजबूर नहीं करते। कभी तलवार जो है वो, इस्लाम जो है वो तलवार के जोर पे नहीं फैला। किसी की गर्दन पे तलवार रख के आप उसको इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते, उसको उस रास्ते पे नहीं ला सकते। आप बता सकते हैं, प्लस माइनसेस बता सकते हैं, जो सनदात हैं, जो दलाइल हैं, दोनों चीज़ों के लिए, वो दोनों बता सकते हैं। यहाँ पे भी क्या हक है? हक यही है कि उन लोगों का साथ दीजिए, यही हक है जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं। और आपको इस दुनिया के लोगों की तरफ जो है वो अपनी आंखें मत लाइए, उनकी तरफ जो है वो अपने आप को जो है वो मत देखिए जो दुनिया की जीनत चाहते हैं, और अपनी आंखें उनसे मत फेरिए जो अल्लाह को पुकारते रहते हैं, जो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह ही की रजामंदी चाहते हैं। ये है हक। और इससे पहले असहाबे काफ का किस्सा हमें बयान कर दिया गया कि उन्होंने हक के लिए जो है वो अपने आप को जो है वो अलहदा कर लिया, अपने माँ बाप, बहन भाई, हर सारे कबीले माशरे को छोड़ दिया, और छोड़ के सिर्फ इसलिए कि वो उनके कहे हुए इलाहों की जो है वो इबादत नहीं करना चाहते थे। वो अपना सर उस अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकाना नहीं चाहते थे। अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने उनको कुछ अरसे के लिए दूर कर दिया, और फिर सब जब उठाया तो उठा के सिर्फ लोगों को इसलिए दिखाया कि वही रब है। क्योंकि मुशरिकीन कहा करते थे, क्या हड्डियां हमारी जब हम चूरा चूरा हो जाएंगे तो क्या दोबारा जिंदा किए जाएंगे? तो अल्लाह ने उस किस्से को बताया कि ये हो चुका है पहले। इसी तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को, जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक जो है वो पहले सुलाए रखा। ये हक है, ये हक तुम्हें बता दिया गया है। अब जिसका दिल चाहे वो इसके ऊपर ईमान ले।
अमन शाह, और जिसको दिल चाहे फल यकफुर, वो इनकार कर दे, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता हमारा। वह जिसका दिल चाहता है मान ले, जिसका दिल नहीं चाहता वो इनकार कर दे इसका। लेकिन यहाँ बता दिया गया कि जो इनकार करेगा उनके लिए फिर हमने आग तैयार कर रखी है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लो कि अगर तुमने इस हक को ठुकराना है, इस नबी को ठुकराना है, इस किताब को ठुकराना है, उन लोगों के लिए इन्ना अतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, हमने ऐसे लाज़ालिम लोगों के लिए आग तैयार कर रखी है। उस आग को भी अहाता बिहिम, उसको घेरे हुए होगी, सुरादिकुहा, उसकी कनातें, उसकी चार दीवारी उसकी, कि वो जन्नत जहन्नम जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि आराम की जगह है, वो आग है। और आग कितनी कि जैसे खाने के लिए जब उनको दिया जाएगा तो वो कौन सा ज़कूम का दरख्त खाते ही चेहरे के पास ले जाते ही जल्द जो है वो, देखिए इंसान की तकलीफ किस में होती है। कभी आपने देखा कुरान पाक में ये फरमाया गया कि हम जिल्द बदल देंगे, आप जिल्द उतार दें, इसके नीचे तकलीफ नहीं होती, तकलीफ जिल्द को होती है। तो कहा गया कि जिल्दें बदल देंगे हम। जैसे ही खाने की चीज़ वो ज़ुकूम या ये तेल जिसकी बारे में बात की गई है कि जब वो गर्मी होगी उस आग में घिरे हुए होंगे, वहाँ से निकल ना पाएंगे, उनके दिल जो है वो प्यास के मारे जो है वो तड़प रहे होंगे उनके चेहरे, तो फिर वो फरियाद रसी चाहेंगे, वो पानी मांगेंगे, वो मांगेंगे कुछ पाने पीने के लिए दे दिया जाए हमें। युवासु, फरियाद रसी की जाएगी उनकी, उनको दिया जाएगा बिमान, साथ पानी, कल मुहले, तेल की तलछट वाला उबलता हुआ पानी, वो दिया जाएगा। वो ना देखते हुए भी उसको पिएंगे, जब मुंह के करीब लाएंगे मुंह की खाल सारी की सारी उतर के जो है वो नीचे पड़े। कहा गया कि इस तरह खाल उतर जाएगी कि गुजरने वाले लोग जो है वो उस खाल से पहचानेंगे कि ये फलां शख्सियत, ये सारी खालें उतर जाएंगी। बिमान कल मुहले, मानद तेल की तलछट की, यशवील वजूह, जो चेहरों को जला देगी, जला के राख कर जला डालेगी। अल्लाहुम्मा रब्बना ला जलना, आमीन, अल्लाहुम्मा रब्बना ला जलना, अल्लाहुम्मा रब्बना ला जलना। बेसस शराब, क्या ही बुरा पीना है, क्या ही बुरा पीने का जो है वसाअत मुर्तफक़, और क्या ही बुरा ठिकाना है। अगर इनकार करना है तो फिर ये अपना हशर, ये अंजाम जो है वो याद रखिए। कल वो मैं एक क्लिप सुन रहा था डॉक्टर इशरार साहब का कि देखिए जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उस वक्त तो बात थी ईमान लाने की कि लोग इनकार करते थे। आज हमें अपने ईमान की तजदीद की ज़रूरत है कि ईमान की तजदीद के लिए यही किताब हमारे सामने है, यही हमें बता रही है कि हक ये है, इस हक को मानना चाहो तो मान लो, नहीं मानना चाहो तो इनकार कर दो। हमने तो किताब को रख ही छोड़ा है सिर्फ सवाब के लिए। अगर नहीं मानोगे, अगर उसी तरह किताब को पढ़ते रहोगे, अल्लाह को जो है मस्जिदों में बंद कर रखोगे, गए नमाज पढ़ी, रमज़ान है, रोज़े रख लिए, ज़कात है, ज़कात दे दी, मस्जिद से बाहर निकल के जो मेरी ज़िंदगी है जैसे मैं चाहूँ वैसे करूँ, मैं जितना चाहूँ गठ तोलने देना, जितनी चाहिए मिलावट करूँ, जितने वादे मर्जी तोड़ूँ, जिस तरह मर्जी सूद खाऊँ, तो फिर ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि उस हक को हमने जो है वो छोड़ दिया है, हमने उस हक का इनकार कर दिया है। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये गुलामी है, और गुलामी हमेशा 24 घंटे की गुलामी होती है। हम उसमें से एक पल भी अपने लिए, अपने कहा गया था कि उन लोगों के लिए अपने नफ्स को रोकिए, उन लोगों के साथ और आप ना फेरिए उनकी तरफ जो है वो जिनके दिलों को हमने गाफिल कर दिया, उनकी इताअत मत करना। तुम्हें कोई भी दुनिया में आके कहे कि इस रास्ते में चल पड़ो, अगर वो कुरान और सुन्नत से मुतादिम रास्ता है उसके ऊपर मत चलना। और उनको जिन्होंने पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की, उनके सारे काम ज़ाया शुदा हैं, वो गए गुजरे हैं। वापस आ जाइए। जिसने कुफर किया उसका ठिकाना आग होगा, जिसको कनातों ने, आग की कनातों ने घेर रखा होगा, और जब वो पाने पीने के लिए कुछ मांगेंगे उनको पिलाया जाएगा, उनको तेल की तलछट पिलाई जाएगी, यशवील वजूह, जो उनके चेहरों को जलाकर रख देगी। क्या ही बुरा पीना है, बुरा पानी है, मशरूब है, वसात मुर्तफा का, और क्या ही बुरी पनाह है। इसमें ज़र्फ़े मकान है, जगह के बारे में बताया गया है, वसात मुर्तफा का, और क्या ही बुरा ठिकाना है। देखिए जहन्नम कोई आराम वाली या रहने वाली जगह नहीं है, ये उस जहन्नम का एक छोटा सा नक्शा के हमारे सामने रखा गया है कि दोनों राहें तुम्हें दिखा दी हैं, ये हक है, अब मर्जी है मान लो, मर्जी है छोड़ दो। अगर नहीं मानोगे आग तैयार कर रखी है,
आग तैयार है जिसको किनातों ने घेर रखा हुआ है, तुम्हारा इंतजार कर लिया रोज़े क़यामत में तुम्हें उसमें डालने के लिए। जब तुम तड़कोगे, चीखोगे, चलाओगे, तुम्हारे हलक में कांटे उभरेंगे, उस वक्त तुम्हें पानी भी दिया जाएगा। वो जो तलछट होगी, वो तेल की तलछट, वो पीप का पानी, खून और पीप का मिला हुआ, वो जिसको मान शदीद कहा गया है पहले सूरह इब्राहिम में। क्या ही बुरा पानी है। वसात मुस्तफ़ा का इन्नमा सात मुस्तकर्रम व मकामा, बिलाशुबा बहुत ही बुरा ठिकाना और वो जगह है जिसके बारे में बात हो रही। अब रास्ता हमारे सामने है, क्या हमने इस आर्जी दुनिया को लेने के लिए उस राह पे चलना है? हक हमारे सामने रख दिया गया है, तो उसका अंजाम सात मुस्तकर्रम व मकामा, बहुत ही बुरा ठिकाना है, बहुत ही बुरी जगह है। उस जगह से बचने की कोशिश आज हम कर सकते हैं, लेकिन जिस वक्त मौत की हिचकी आखिरी आ जाएगी, उसके बाद से फिर हमारी वो सारी कोशिशें उसके बाद तो बेसूद होगा कुछ भी करना। हाँ, दूसरी तरफ अल्लाहुम्मा रब्बना जलना, उनमें से हमें कर देना जिनका जिक्र अगली आयत मुबारका में किया गया है। यहाँ मुकाबला दिखाया गया है, हक है माना उसको ये मिलेगा, नहीं माना उसका ये ठिकाना। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए हैं, वामिलुस सालिहात। देखिए कहीं पे भी सिर्फ ईमान लाने की बात नहीं की गई। जहाँ पे भी अगर हम कहें कि हमने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं, तो सिर्फ ईमान लाना नजात के लिए काफ़ी नहीं होगा, उसके लिए अमले साले ज़रूर करने हैं। अगर हमने कलमा पढ़ लिया, दुनिया के रजिस्टर में हमारा बीन मुस्लिम नाम लिखा गया, लेकिन अगर हमने हमारे अमाल जो है वो उस तरह के नहीं रहे, तो फिर उस ईमान लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए, इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसना अमला, बेशक हम उनके अच्छे अमाल का अजर ज़ाया नहीं करेंगे। इसके बारे में कल जो उनको दिया जाएगा, जो उनको जो है वो लवाज़मात, जो शराब, जो यहाँ पे चीज़ें हराम हैं, वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जो कुछ तैयार कर रखा है, अगली आयत करीमा में उसका तज़किरा भी होगा। अब भी एक कंपैरिजन हमारे सामने अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3-4 आयत में सामने रख दिया कि उस कंपैरिजन को देख लो, अपना रास्ता चूज़ कर लो। अगर सारी की सारी मखलूक जो है वो जहन्नमी भी हो जाए तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, सारे के सारे जन्नत में भी चले जाएं, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं आएगी। ये बार बार क्यों बताया जा रहा है? इसलिए कि अपने बनाए हुए खिलौने को अल्लाह तबारक व तआला जो है वो जलाना नहीं चाहते। वो राह दिखाते हैं, नबी भेजते हैं, किताबें भेजते हैं, और बार बार हमें नसीहतें फरमाते हैं। अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर अंजाम भी सामने है, मान लेंगे तो अच्छा ठिकाना भी हमारे सामने है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना। बीमारों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत कामिला नसीब फरमाए, सबको सेहत वाली ज़िंदगी जो है वो नसीब फरमाए। बहुत सारे दोस्त इस वक्त जो है वो कोविड का शिकार हैं, उसके अलावा बीमार हैं, सबके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला को सबको सेहत कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ कीजिए उन मुसलमान भाइयों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबकी मग़फ़िरत बख्शिश फरमाए। जिनकी अल्लाह की यहाँ मग़फ़िरत बख्शिश हो चुकी, अल्लाह से उसके उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।